آپ دیکھ رہے ہیں داستان کدا۔ پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے۔ تحریر ریحانہ امجد بخاری۔ قسط نمبر 5۔ ایسے نہیں، کم از کم 4 قدم چل کر رکنا ہے، پھر رائٹ سائڈ پر دیکھتے ہوئے ڈائلاگ ڈیلیوری دینی ہے۔ رکو، میں کر کے دکھاتا ہوں، اذان نے علی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ میں جمع تھے اور زور و شور سے ڈرامے کی ریہرسل میں مصروف تھے۔ اذان بطور ڈائریکٹر ان کی موومنٹ، فیس ایکسپریشن اور ڈائلاگ ڈیلیوری کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا، اور کہیں کہیں انہیں ٹوکنے کے ساتھ ساتھ اٹھ کر خود ایکٹ کر کے انہیں سمجھا بھی رہا تھا۔ اس نے 4 قدم چل کر مکمل ایکسپریشن کے ساتھ جملے ادا کیے، پھر علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب سمجھ میں آ گیا، اب تم کر کے دکھاؤ۔ بات ختم کر کے اذان واپس پلٹا اور فہیم کے قریب جا بیٹھا جو ایک کرسی پر بیٹھا ان کا جوش و خروش دیکھ رہا تھا۔ علی نے اذان کے بتائے ہوئے انداز میں موو کیا اور پھر بالکل اسی کی طرح رائٹ سائڈ پر مڑتے ہوئے مکالمہ ادا کیا۔ ویل ڈن، یہ ہوئی نا بات، اسی لیے تو تمہارے ساتھ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اذان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ علی ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر جاپانی انداز میں جھکتے ہوئے بولا، اجی آپ کی محبت ہے اذان صاحب، ورنہ بندہ کس قابل ہے۔ پھر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، محاورتاً کہہ رہا ہوں، سچ مت سمجھ لینا، فردوس جمال کا شاگرد ہوں، اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں یقین ہے۔ جملہ ادا کرتے وقت اس کا انداز فخریہ تھا۔ بس رہنے دو، اب زیادہ اتراؤ نہیں، 8 مرتبہ بتایا ہے تب جا کے کر پائے ہو، اذان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اذان سمیت سب چونک کر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ کھلے ہوئے دروازے پر کون دستک دے رہا ہے؟ فہیم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ پھر جب کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سب کی نظروں میں اشتیاق لہریں لے رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ پورے کمرے میں خوشبو چکرانے لگی۔ اس سراپا خوشبو نے اپنے لمبے سیاہ چمکدار بالوں کو ایک ادا سے پیچھے دھکیلا، لیکن پھر ان سب کو مسلسل اپنی طرف متوجہ پا کر سرخ سی ہو گئی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی سمیٹے اس نے فردن فردن سب کا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد انداز میں فہیم کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، جی فہیم صاحب، آپ کے کہنے پر میں آ تو گئی ہوں، مگر آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ فہیم نے گڑبڑا کر اذان کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے بولا، جی بولیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صرف یہ کہ پلے کی ویڈیو نہیں بنے گی، اور اگر بنے گی تو کیبل پر نہیں چلے گی۔ ہم ذکر گفتگو ہیں، محو گفتگو ہم ہیں، ہم آئینہ ہیں، نظر ہم ہیں، روبرو ہم ہیں۔ 2 گاڑیاں ایک دوسرے کے تعاقب میں پوری رفتار سے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ایک گاڑی میں ماسٹر شوکت، شاہد، ولیکا اور علی سوار تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں اس وقت فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ عبداللہ اور نعیم خرم پھنسا کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عقبی سیٹ پر کھڑکی والی داہنی سائیڈ پر اذان، اس سے آگے فہیم اور بائیں کھڑکی والی سائیڈ پہ ماہم براجمان تھی۔ ماہم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے مناظر کا نظارہ کر رہی تھی، جبکہ اذان اس کے ماتھے پر جھولتی ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی بالوں کی ایک شریر لٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ماہم نے شاید اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کر لیا۔ اس نے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے اذان کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، لیکن اذان کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اس کی نگاہوں میں جیسے ڈوب سا گیا۔ ماہم نے ایک لحظہ اس کی طرف دیکھا اور پلٹ کر پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اور اذان اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی اس لاپرواہی سے چڑ سا جاتا تھا، اور وہ تھی کہ مسلسل اسے نظر انداز کیے جا رہی تھی، اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ اذان سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک وہ اس لاتعلقی کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ روزانہ شام کے وقت سادہ سے حلیے میں کتابیں اپنے دائیں ہاتھ میں لیے سینے سے لگائے وہ اس کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اذان کا خیال تھا کہ وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، اور وہ اسے دیکھتا رہ جاتا تھا۔
सुर्ख व सफ़ेद रंगत और मेकअप से बेनियाज हुस्न व सादगी का ये पैकर अजान को मुतासिर कर गया था और वो रोज़ाना उसकी आमद के वक्त का इंतज़ार करता था। उसकी मुतलाशी नज़रें सड़क पर चकराती रहती और फिर वो नज़र आ जाती। उसके सीने पर धरी किताबों में सबसे ऊपर एक रजिस्टर रखा होता था जिस पर जली हरूफ में एक लफ्ज़ प्रिंट था, लालो लाल, और वो बेख्तियार मुस्कुरा देता। पैदल चलने की वजह से उसकी सुर्ख रंगत मज़ीद सुर्ख नज़र आती और वो इस हसीन इत्तफाक पर खुद ब खुद मुस्कुरा देता, लेकिन उसके बारे में मज़ीद जानने की उसने कभी कोशिश भी नहीं की थी। वो गुज़रती थी, वो देखता था और कुदरत की कारीगरी की दाद देता था और बस। और अब वो उससे अटक रही थी। अब उसे इसका नाम भी मालूम हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसकी तरफ से लापरवाही बरत रही थी। वो उसकी इस बेइतनाई पर सुलग उठता, लेकिन अपने जज्बात का इजहार भी नहीं करता। ठीक ही तो है, अगर उसके लिए पसंदीदगी के जज्बात मेरे दिल में हैं तो उसे क्या पता, उसने जैसे खुद को समझाया। उसने सर झटक कर अपने आप को इस कैफियत से आज़ाद करवाने की कोशिश की और फिर अमीक नज़रों से गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद का जायज़ा लिया। नईम और अब्दुल्ला आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। माहम बदस्तूर खिड़की से बाहर नज़रें जमाए बैठी थी। अजान की नज़रें एक मरतबा फिर उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। ठीक उसी लम्हे फ़हीम के खंखारने की आवाज़ बुलंद हुई तो अजान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो अजीब सी नज़रों से उसी की जानिब देख रहा था। अजान चोर सा बन गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो खुद को संभाल कर कनखियों से माहम की तरफ देखते हुए फ़हीम से मुखातिब हुआ। अगर आंखें रास्तों के मनाजर में ना उलझें तो मंजिल पर पहुंचकर थकी हुई नहीं बल्कि ताज़ा दम दिखाई देती हैं। माहम ने चौंक कर अजान की तरफ देखा। चंद लम्हे बगौर उसका चेहरा देखने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं तो महज यहाँ खिड़की के पास बैठी हूँ, और फिर ज़रूरी नहीं होता कि जो नज़र आ रहा हो इंसान उसे देख भी रहा हो। अजान ने एक सरसरी सी नज़र माहम के चेहरे पर डाली और फिर दोबारा फ़हीम से मुखातिब होते हुए बोला, फ़हीम, तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग अपने हाल से मुतमिन नहीं होते वो तलखियों से फरार हासिल करने के लिए माजी की खिड़कियां खोल लेते हैं? हसरतों की खिड़कियां, शिकायत की खिड़कियां, दुख सुख की खिड़कियां, यादों की खिड़कियां, वहमो गुमान की खिड़कियां, खौफो खदशात की खिड़कियां, हिर्सो हवस की खिड़कियां। ये सोचें खिड़कियां ही तो होती हैं। फ़हीम खामोशी से अजान का मुंह तक रहा था। उसने कसमसा कर पहलू बदला और एक नज़र माहम की तरफ देखा, जिसकी नज़रें पुरसोच अंदाज में अजान के चेहरे का इहाता किए हुए थी। चंद लम्हों बाद वो पुरख्याल अंदाज में गोया हुई, असल में हमारे यहाँ तवाज़ुन की इतनी कमी है कि लोगों में या तो अकली शकूक के ढेर लगे हुए हैं या लफ्ज़ों के आबशार बह रहे हैं। लेकिन कौन क्या है, उसकी असल क्या है, वो क्या सोच रखता है, उसकी ज़ात की गहराइयों में कितने इसरार पोशीदा हैं, ये जानना या इसका सुराग लगाना इतना भी आसान नहीं होता। मेरे नज़दीक किसी भी इंसान के बारे में सतही अंदाज़ा कायम करना गुनाह है। और अजान जो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था, उसकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुआ, मिस माहम, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इबादत ये है कि जो काम आपको सौंपा जाए उसे दिल लगाकर खुशसलूबी, शौक, एहतमाम और पूरी दयानतदारी से किया जाए। माहम के होंठों पर मुस्कुराहट की बारीक सी एक लकीर खिंच गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मादूम हो गई। अजान साहब, कुछ लोग अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से करते हैं, लेकिन इसका क्या किया जाए कि फिर भी उनकी हौसला अफजाई न हो। माहम की बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें सवालिया अंदाज में अजान के चेहरे पर गड़ी हुई थी, और अजान तो उसकी आंखों में देखकर अजीब से एहसासात का शिकार हो ही जाता था। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा सा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर बोला, तारीफ इंसान में अजमत का झूठा एहसास जगा देती है, इसे बंदे से बुत बना देती है। झूठी अना का शिकार होने से बेहतर होता है कि इंसान आंखों में आजिज़ी का सुरमा लगा कर देखे। हर चीज़ अपनी जगह अहम और कीमती दिखाई देगी। अजान का जुमला मुकम्मल होते ही शायद फ़हीम का पैमाना सबर लबरेज हो गया। कबल इसके कि माहम कोई और जवाब देती, उसकी आवाज़ बुलंद हुई, ओए भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता यार, ये क्या खुश्क गुफ्तगू शुरू कर रखी है तुम लोगों ने। दोनों ही अपने आप को दानिश्वर साबित करने पर तुले बैठे हो, और मैं अकलौता सामे दरमियान में ख्वार बैठा हूँ।
आखिर तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो? मैंने मान लिया कि तुम दोनों ही फलसफी हो, अब मेरी जान बख्शो। बताओ यार, पिछले 1.5 घंटे से ये बहस सुन रहा हूँ, जिसका कोई सर है न पैर, गल बनती है कोई। ठीक उसी लम्हे सामने वाली गाड़ी के ब्रेक चरचराए और फिर उसके पीछे उनकी गाड़ी भी रुक गई। सामने ही किसी स्कूल की इमारत नजर आ रही थी। इसका मतलब था उनकी मंजिल आ चुकी है। ओबाश दोस्तों के लिए वो सब कुछ छोड़ने पे राजी हो गया। उस अशरफ से मोहब्बत निभाने की खातिर उसने उसी का पेशा अख्तियार कर लिया। ये जस्त की पेटियां बनाकर इसके कौन से ज़ौक़ की तस्कीन होती है? सिर्फ इस बात की कि वहाँ वो सारे अनपढ़ लड़के उसको अंधों में काना राजा वाली अहमियत देते हैं और इससे वो सब करवाते हैं जो किसी भी शरीफ इंसान के करने के काम नहीं। फिर तुम कहती हो कि सज़ा न दूं? वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं अपने किए पर। हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, शर्मिंदगी भी एक तरह की तौबा है। अल्लाह का वास्ता है तुम उसे तौबा करने दो, सुधरने दो। इस बार ज़किया बेगम कुछ नहीं बोली। आज के बाद तुम फरजान के लिए मुझसे कुछ नहीं कहोगी। फिर उन्होंने उठते हुए बाहर निकलने से पहले ज़किया बेगम को देखा जो सर झुकाए बैठी थी, तो दोबारा बोले, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मेरा बैग तैयार कर दो। लाहौर? खैरियत? ज़किया बेगम चौंक गई। हाँ, लाहौर से परवीन का फ़ोन आया था। उसके शौहर की तबीयत ख़राब है, उसके अलावा कुछ मामलात में उसे मुझसे मशवरा लेना है, इसलिए जा रहा हूँ। ज़किया बेगम ने इस बार गौर से शौहर की तरफ देखा। वो जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, शौहर ने उन्हें कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो इंतहाई मुहज़्ज़ब, पुरवकार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। तबीयत में सादगी और इनकिसारी थी। गरीब परवर थे, हर एक के दुख दर्द में काम आने वाले, मेहनत से जो कुछ कमाते लाकर बीवी के हाथ में रख देते। रिज़्क़ हलाल की तगोदो में वो अपने हकीकी मालिक को नहीं भूले और ना ही इस फिक्र मुआश में वो अपनी औलाद की तरफ से गाफिल हुए थे। दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, मगर कहीं कोई कमी रह गई थी। इसका अंदाज़ा फरजान को देखकर हो जाता था। पहले तो वो नरमी से उसे सरजनिश करते रहे थे, मगर अब तो हद ही हो गई थी। मोहल्ले से शिकायत आई तो उन्हें एहसास हुआ कि अब भी वक्त है इसकी इस्लाह करने का, और यही सोचकर उन्होंने उसे घर से जाने का हुक्म दे दिया था। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।